Welcome students, Science and Technology, Standard 10, Part 2nd. Subject teacher Gerte, AD. We can learn Chapter 3, Life Process in Living Organism. सजीवों में जीवन प्रक्रिया, Part 2nd and Part 2. Formation of new organism of some species by earlier existing organisms is called as reproduction. Reproduction is one of the various important characters of living organisms. It is also one of the various reasons responsible for evolution of each species in living organism. Reproduction occurs mainly by two methods. Those two methods are asexual and sexual reproduction. ये एक सजीव से उसी प्रजाति का नया सजीव बनने की प्रक्रिया को ही प्रजनन कहा जाता है और प्रत्येक प्रजाति के उत्क्रांति के लिए जिम्मेदार घटकों में प्रजनन एक महत्वपूर्ण घटना है या घटक है। सजीवों में प्रजनन मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है और ये दो प्रकार अर्थात अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक प्रजनन। Observe the picture and tell the life process which you identified. What do we mean by maintenance of species A, B, C, D and three life process? Observe. Can you recall? Process of formation of new organisms by an organisms of some species without involvement of gametes is called as asexual reproduction. युग्मकों का निर्माण किए बिना किसी प्रजाति के एक ही सजीव ने अपने समान नवजात सजीव निर्माण करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को ही अलैंगिक प्रजनन कहा जाता है. As this reproduction does not involve union of two different gametes, the new organisms have exact genetic similarity with the reproducing organisms. This uniparental reproduction and it occurs by biotic cell division, absence of genetic recombination is a drawback, whereas fast process is advance of this reproductive method. दो भिन्न कोशिकाओं के संयोग के बिना यह प्रजनन होता है, इसलिए नवजात सजीव बिल्कुल मूल सजीव जैसा ही होता है. इस प्रजनन में एक जनक से नए सजीव का निर्माण गुणसूत्रीय विभाजन के द्वारा होता है. जननिक विचलन का अभाव यह अलैंगिक प्रजनन की हानि है, तो तीव्र गति से होने वाला प्रजनन इस पद्धति का लाभ है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स यानी कि एक कोशिकीय सजीव में अलैंगिक प्रजनन. फर्स्ट वन बाइनरी फिजन यानी कि द्विवी विभाजन. प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लिना एक्सेट्रा एंड यूकैरियोटिक सेल organelle like mitochondria and chloroplasts perform asexual reproduction by binary fission. In this process, the parent cell divides to form two similar daughter cells. Binary fission occurs either by mitosis or amitosis. आदि केंद्र की सजीव, जीवाणु, आदिजीव, अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लिना. दृश्य केंद्र की कोशिका में स्थित तंतुकणिका और हरित लवक यह कोशिका अंगक द्विविभाजन पद्धति से अलैंगिक प्रजनन करते हैं और इस पद्धति में जनक कोशिकाएं बनती है. यह विभाजन माइटोसिस यानी समसूत्री या असमसूत्री यानी अमाइटोसिस पद्धति से होता है. एक्सिस ऑफ फिजन डिवीजन is different in different protista. Example, amoeba divides in any plane due to lack of specific shape, hence it is called as simple binary fission. अलग अलग आदिजीवों में विभाजन का
अक्ष भी भिन्न भिन्न होता है। उदाहरणतः अमीबा, अमीबा का कोई विशिष्ट आकार न होने से किसी भी अक्ष में उसका विभाजन होता है, इसलिए इसे साधारण द्विविभाजन कहा जाता है, यानी कि सिंपल बाइनरी फिजन कहा जाता है। पैरामेशियम डिवाइडेड बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, whether as Euglena by longitudinal binary fission. Binary fission is usually performed by living organisms during favorable condition, that is availability of abundant food materials. भी पैरामेशियम क्षैतिज द्विविभाजन पद्धति से, तो यूग्लिना अर्धोदर द्विविभाजन पद्धति से विभाजित होता है। सामान्यतः सजीवों में द्विविभाजन अनुकूल परिस्थिति में अर्थात पर्याप्त भोजन जब उपलब्ध होता है तभी उसमें ये द्विविभाजन होता है। मल्टीपल फिजन यानी बहुविभाजन। Asexual reproduction of multiple fission is performed by amoeba and other protista. Amoeba stops the formation of pseudopodia and thereby moments whether as there is lack of food or any other type of adverse condition. It becomes rounded and form protective covering around plasma membrane. Such encysted amoeba or any other protista is called as cyst. Many nuclei are formed by repeated nuclear division in the cyst. It is followed by cytoplasmic division and thus may amoebulae are formed. They remains encysted till there are adverse condition. Cyst breaks open and arrival of favorable condition and many amoeba are released. अमीबा और उसके समान एक कोशिकीय आदिजीव प्रतिकूल परिस्थिति में बहुविभाजन पद्धति से अलैंगिक प्रजनन करते हैं। जिस समय अपर्याप्त भोजन या अन्य प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति का निर्माण होता है तब अमीबा कूटपात तैयार नहीं करता और अपनी हलचल को रोक देता है। वह गोलाकार हो जाता है और कोशिका पटल के चारों ओर एक कठोर संरक्षण आवरण तैयार करता है और इस आवरण युक्त कठोर संरक्षण को सिस्ट यानी कि पुटी कहते हैं। पहले पुटी के अंदर सिर्फ केंद्रक का कई बार समसूत्री विभाजन होकर के अनेक केंद्रकों का निर्माण होता है। उसके पश्चात कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता है और अनेक छोटे छोटे अमीबा तैयार होते हैं। जब तक प्रतिकूल परिस्थिति है तब तक वह पुटी में ही रहते। अनुकूल परिस्थिति में पुटी का आवरण फट जाता है और उसमें से कई शिशु अमीबा मुक्त हो जाते हैं। आकृति में यू सी द आकृति पेरेंटल अमीबा, उसके बाद में सिस्ट बनता है उसके चारों ओर। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियाई एंड साइटोप्लाज्मा यानी कि वो पुटी में ही उसका न्यूक्लियाई का विभाजन हो जाता है और उससे जब उसको अनुकूल परिस्थिति मिलती है तब वो सिस्ट फट जाता है और डॉटर अमीबा बाहर आ जाते हैं। यू विल सी द ईस्ट सेल performing budding, that is a small bud coming out of many parent cell. Asexual reproduction occurs by budding. In yeast, a unicellular fungus, each cell produces two daughter nuclei by meiotic division so as to reproduce by budding. This yeast cell is called as parent cell. A small bud appears on the surface of parent cell. This bud is actually a bud. One of the two daughters nuclei enters this bud. After sufficient growth, bud separates from the parent cell and separate to alive independently as a daughter cell. आपको किन्व कोशिका इसमें मुकुलन करती हुई दिखाई देती है, अर्थात अनेक किन्व कोशिकाओं को एक छोटा सा उभार दिखाई देता है। मुकुलन पद्धति से अलैंगिक प्रजनन होता है। किन्व कोशिका मुकुलन पद्धति से प्रजनन करने के लिए समसूत्री विभाजन द्वारा दो नवजात केंद्रकों का निर्माण करती है। इस कोशिका को जनक कोशिका कहते हैं। इस जनक कोशिका को एक छोटा सा उभार आता है। यह उभार अर्थात मुकुल होता है। दो नवजात केंद्रकों में से एक केंद्रक मुकुल में प्रवेश करता है। मुकुल की पर्याप्त वृद्धि होने के बाद वह जनक कोशिका से अलग हो जाता है और स्वतंत्र नवजात किण्व कोशिका के रूप में वो बढ़ने लगता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स
बहुकोशिकीय सजीवों में अलैंगिक प्रजनन किस प्रकार से होता है। फर्स्ट वन है फ्रेगमेंटेशन यानी कि खंडी बॉन्ड। द टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन द बॉडी ऑफ parent organism breaks up into many fragments and each fragment starts to live as an independent new organism. This type of reproduction occurs in algae like Spirogyra and sponges like Cycon. खंडीबॉन्ड फ्रैगमेंटेशन खंडीबॉन्ड यह अलैंगिक प्रजनन की एक बहुकोशिकीय सजीव में पाई जाने वाली पद्धति है। इस पद्धति में जरक सजीव के शरीर के अनेक छोटे छोटे खंडों में विभाजन हो जाता है और इसमें से एक प्रत्येक खंड एक नया सजीव के रूप में जीवन जीने लगता है, जैसे कि शैवाल, इसमें स्पायरोगायरा और साइकॉन जैसे स्पंज के प्रकारों के सजीवों में इस पद्धति से प्रजनन होता है। रीजनरेशन whenever there is plenty of water and nutrients are available to Spirogyra, its filaments grow up very fast and break up into many small fragments. Each fragment starts to alive independently as a new Spirogyra fiber. If the body of Cycon breaks up accidentally into many fragments, each fragment develops into a new Cycon. स्पायरोगायरा को जब पर्याप्त पानी तथा पोषक तत्व मिलते हैं तब उसके तंतुओं में वृद्धि तीव्र गति से होकर वह तंतु छोटे छोटे खंडों में खंडीभूत होती है और प्रत्येक खंड स्वतंत्र नवजात स्पायरोगायरा के तंतु के रूप में बढ़ता है। साइकॉन के शरीर में अगर किसी घटना में छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं तो प्रत्येक टुकड़ा एक नया साइकॉन का निर्माण उसमें करता है। सेकंड वन, रीजनरेशन यानी कि पुनर्जनन। You may know that the wall lizard breaks up and discard some parts of its tail in emergency. Discard part is regenerated after a period. This is an example of limited regeneration. अभी आपको पता होगा कि प्रतिकूल परिस्थिति में छिपकली अपनी पूंछ को काट देती है। कुछ समावधि के बाद कटा हुआ पूंछ का हिस्सा पुनर्जनित किया जाता है और इसी पद्धति को मर्यादित पुनर्जन पद्धति कहा जाता है, लिमिटेड रीजनरेशन कहा जाता है। हाउएवर अंडर सर्टन सिचुएशंस एन एनिमल प्लानेरिया ब्रेक्स अप इट्स बॉडी इनटू टू पार्ट्स एंड देयरफॉर ईच पार्ट्स रीजनरेट्स remaining parts of the body and thus two new planaria are formed. This is called as रीजनरेशन। अभी प्लानेरिया जैसे कुछ प्राणी विशिष्ट परिस्थिति में स्वयं के शरीर के दो टुकड़े कर लेते हैं और प्रत्येक टुकड़े से शरीर का बचा हुआ जो हिस्सा रहता है वो नए से बनकर दो नवजात प्राणी उसमें निर्माण होते हैं और इसी को पुनर्जनन कहा जाता है। थर्ड वन, बडिंग यानी मुकुलन। इन केस ऑफ हाइड्रा, under the favorable conditions of specific parts of its body, the outgrowth is formed by repeated division of regenerative cell of body wall. The outer growth is called as bud. Bud grow up progressively and finally forms a small hydra. यानी कि जो हाइड्रा की पूर्ण वृद्धि होने पर उसके शरीर की भित्ति पर विशेष स्थान पर पुनर्जनन कोशिका विभाजन से एक उभार तैयार होता है और इस उभार को मुकुल कहते हैं। समय के अनुसार मुकुल की वृद्धि होती है। बडिंग हाइड्रा आर इन कनेक्टिविटी विद दोज ऑफ पेरेंट हाइड्रा। पेरेंट हाइड्रा सप्लाइज न्यूट्रिशन टू द बडिंग हाइड्रा. Budding hydra separates from parent hydra and separates to lead an independent life when it grows up and becomes able to lead an independent life. अभी ये जो नवजात हाइड्रा तैयार होता है, इस हाइड्रा का शरीर स्तर एवं पचन गुहा यह जनक हाइड्रा के शरीर स्तर और पचन गुहा से जुड़ा रहता है। नवजात हाइड्रा का पोषण जो है वो जनक हाइड्रा करता है और नवजात हाइड्रा की वृद्धि पूर्ण वृद्धि हो जाने
पर वो स्वयं का अस्तित्व बनाने में समर्थ हो जाता है और वह जनक हाइड्रा से अलग होकर एक नया स्वतंत्र जीवन यापन करने लगता है। फोर्थ वन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी कि शाकीय प्रजनन। Reproduction in plants with the help of vegetative parts like roots, stems, leaf and buds is called as vegetative reproduction. वनस्पतियों के तड़, जड़, तना, पत्तियों ऐसे मुकुल जैसे शाकीय अवयव द्वारा होने वाला जो प्रजनन रहता है उसी को शाकीय प्रजनन कहा जाता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन potatoes that is performed with the help of cysts present on tuber, whereas in bryophyllum it is performed with the help of bud present on leaf margin. In case of plant like sugarcane and grasses, vegetative propagation occurs with the help of buds present on nodes. Plants like carrot and radish perform vegetative propagation with the help of roots. किसी आलू में शल्क पत्रों के कक्ष में पाए जाने वाले कलिकाओं या घातपर वनस्पतियों की पत्तियों के किनारे पर पाए जाने वाले खांचों की कलिकाओं की सहायता से शाकीय प्रजनन होता है। गन्ना घास जैसी वनस्पतियों की गांठों पर पाए जाने वाले मुकुल की सहायता से उनका एक नया वनस्पति तैयार होता है। गाजर, मूली, शकरकंद जैसी वनस्पतियों के जड़ों की सहायता से शाकीय प्रजनन उसमें होता है। बीजाणुओं का निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन यानी कि टेक अ पीस ऑफ वेट ब्रेड ऑन अ बेकरी एंड कीप इट a humid place. Fungus will grow on it 2-3 days. Observe the fungus under compound microscope and draw its diagram. Fungi like mucor have filamentous body. They have spirogyra. Ones of sporangia. Fungus like mucor like filamentous body. They have sporangia. Occurs a spore and form a sporangia burst and spore are released. Spores germinate in moist and warm place and new fungi colony is formed. म्यूकर जैसे कवकों की शरीर की रचना तंतुमय होती है, उन्हें बीजाणुदानी होती है। उनके बीजाणुदानी में से बीजाणुओं का निर्माण होकर वह फूट जाता है और बीजाणु बाहर निकल आते हैं और ये बीजाणु उचित तापमान आर्द्रता मिलने पर अंकुरित होते हैं तथा उनसे नए कवक जाल का निर्माण उनसे होता है। थैंक यू।